Welcome students. Today we are going to start a new chapter in class 11, that is chapter number 8, binomial theorem. So we have completed a good amount of portion till now, correct? Now let's go for the new chapter which is called as binomial theorem. So first of all, what do we mean by binomial? What do we mean by binomial? You have understood something like this in your 9th standard if you remember polynomial, correct? If there is a one term, we called it as a monomial. If there is a two terms, we called it as a binomial. That means it has two terms. Two terms yani ki like a plus b. This is considered as a two terms. Whatever could be the power, it is different thing. But when we have something like this, we call it as a binomial, correct? Now, how are we going to utilize this binomial theorem, or what are the applications? That is what we are going to understand in this chapter. Suppose we know what do we know? A plus b square. Do you know what is this a plus b square? So a plus b square is a square plus 2ab plus b square. Similarly, we know what is a plus b cube. Okay, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Similarly, if I want you to find a plus b whole raised to 4, can you find out? Yes, definitely, but it will take time. We will go for something like a plus b whole square into a plus b whole square, or you can directly go for something like this. Simple, correct? अगर हम इस तरह से गए a plus b raised to 5, तो भाई a plus b whole square into a plus b whole cube वगैरह वगैरह करेंगे, and will try to get to the values. But it will keep on getting difficult ना, जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाते जा रहा हूँ. Here we are going to call this particular power as index, correct? इसे क्या कहेंगे? Index. So as I am increasing the power, यानी कि index बढ़ाते जा रहे, a plus b raised to 6, a plus b raised to 7, then how we are going to solve this? Those will become very difficult for us, correct? So to make sure that क्या हम उन्हें अच्छे से solve कर पाए, we are going to see something in this particular chapter जिसका नाम है binomial theorem, correct? Now before we go there, let's try to observe few things out of this particular formulas, because we know this 2 as a formula. We can try to get the value of this 2 and we can go further like this, but first of all let's try to narrow it down something. So what we are trying to get it from here is कि सबसे पहला, if you look at the term, like first is a and second is b, correct? And if I check the powers of first term, तो देखो reduce होते जा रहे हैं, तो can I say a, the power of a is reducing by 1? Can I say something like this? Reducing by 1. देखो सबसे पहले whole square था, correct? तो a square फिर एक कम हो गया and then 0. फिर क्यूब था तो पावर एक एक रिड्यूस हुआ, a क्यूब a स्क्वायर a and then 0. Similarly we can say power of b is increasing by 1. चेक कर लो b के लिए, तो b raised to 0, b raised to 1, b raised to 2. यहाँ पे b के लिए b raised to 0, b raised to 1, b raised to 2, b raised to 3. Same you will get something over here also. We'll try to generalize this 2 also in this manner, करेक्ट? तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था. सेकेंड, अगर मेरे टर्म का पावर है 2, टोटल पावर इज 2, सो टर्म मिली मुझे 3, करेक्ट? देन सिमिलरली इफ आई हैव होल क्यूब तो टर्म मिलेगी 4. सो इफ आई हैव n टर्म्स, इफ n टर्म्स देन n plus 1, करेक्ट? सो यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वॉट एवर विल बी योर इंडेक्स, उससे एक वैल्यू बढ़ जाएगी. I just told you what is index, correct? So number of terms will be one more than index. एक आपके इंडेक्स से बढ़ जाएगी, करेक्ट? अगर आपका इंडेक्स 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3, अगर आपका इंडेक्स 3 है नंबर ऑफ टर्म्स 4, अगर इंडेक्स 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5, करेक्ट? दिस इज सेकेंड ऑब्जर्वेशन. थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है ना वो बहुत नीट एंड क्लीन है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी होल स्क्वायर, नाउ द इंडेक्स इज 2, यानी कि a का पावर 2 है. यहाँ पे देखो दोनों a और b का पावर 1 1 है, यानी कि मैं इसको भी 1 + 1 2 बोल सकता हूँ. सिमिलरली b का पावर भी 2 है. सो हर एक टर्म का जो पावर है वो 2 ही रहेगा व्हेन इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर. उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि a प्लस बी होल क्यूब, तो हर एक टर्म का पावर जो है वो
3 हो जाना चाहिए। कुछ इस तरह से ध्यान रखना है कि आपको a का पावर और b का पावर, जो भी पावर हो, लेट मी से x और y, इन दोनों को ऐड करके मुझे आपके इंडेक्स के लिए बताना है। दिस टू सम शुड बी इज इक्वल्स टू इंडेक्स। जो भी इंडेक्स हो, 2 हो तो 2 मिलना चाहिए, 3 हो तो 3 मिलना चाहिए, 4 हो तो 4 मिलना चाहिए, 5 हो तो 5 मिलना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे वापस डिफिकल्टी तो यही है कि हमें a प्लस बी रेस टू 4, a प्लस बी होल रेस टू 5, होल रेस टू 6 ऐसा कुछ होगा तो हम किस तरह से करेंगे, करेक्ट। सो लेट मी मेक यू वन concept for you, not make you actually, this is a concept maybe you have heard in your 9th or 10th standard, maybe few of my students already know because I already taught them। मैंने 9th standard में जब ये identities कराई थी तो उनको सिखाया था, करेक्ट। तो how are we going to understand this? तो सबसे पहले ऐसा समझो कि suppose your index is 0, यहाँ पे हम बोल देते हैं let's say this is index, correct, and these are the coefficients। क्या कहेंगे इसे, इंडेक्स और कोएफिशिएंट्स। इंडेक्स यानी कि सपोज माय टर्म इज a प्लस बी, है ना, तो उसका पावर जो होगा वो हम इंडेक्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं 0। सो इफ आई टेक a प्लस बी इक्वल्स टू 0, माय आंसर इज गोइंग टू बी 1। कोएफिशिएंट बोलो जो भी बोलो सब 1 ही आएगा बिकॉज एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। फिर हमने इंडेक्स 1 ले लिया यानी कि a प्लस बी रेस टू 1, यानी कि बचा क्या, अगर मैं ऐसा लिखूं a प्लस बी रेस टू 1, सो आई एम लेफ्ट विद a प्लस बी। सो दोनों का कोएफिशिएंट कितना है, 1 और 1, करेक्ट। उसी तरह से अगर मैंने इंडेक्स 2 किया तो आई हैव ओवर हियर a प्लस बी का स्क्वायर, तो कोफिशिएंट 1 2 1 कैसे मिला, 1 2 1। तो ये आपका लगा कुछ इस तरह से। इसे कहते हैं पास्कल ट्राइंगल। क्या कहते हैं इसे, पास्कल ट्राइंगल। ऐसे हम करते जा सकते हैं। आई शो यू टिल फ्यू पॉइंट्स, यानी कि फ्यू इंडेक्स। तो 3 ले लिया तो क्या वापस 1, इन दोनों से क्या बनेगा 1 प्लस 2 3, इन दोनों से 1 प्लस 2 3 और ये 1, करेक्ट। उसी तरह से अगर अब इंडेक्स 4 आ गया, देखो ये रहा, तो क्या होगा, तो के 1 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 और 1। अब अगर मैं बोलूं आपको कि आपको ये a प्लस बी होल रेस टू 4 और a प्लस बी होल रेस टू 5 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो वो ऑब्जर्वेशंस ध्यान रखो कैसे लिखे थे हमने। तो ये सारे तो कोफिशिएंट्स है, तो कोफिशिएंट्स में कैसे लिखना है कि पहला जो टर्म होगा उसके पावर रिड्यूस होंगे और दूसरा जो टर्म होगा उसके पावर इंक्रीज होंगे। सो 1 है यानी कि a रेस टू 4, करेक्ट, प्लस फिर क्या होगा कोफिशिएंट 4, करेक्ट। अब a का पावर रिड्यूस और b आ गया, प्लस कोफिशिएंट 6, a का पावर रिड्यूस b का इंक्रीज, प्लस 4 आ गया, a का पावर रिड्यूस b का इंक्रीज, प्लस 1 है और b रेस टू 4। इस तरह से आपका इसका एक्सपांशन होता है, करेक्ट। वैसे अगर मैं कहूं कि इंडेक्स 5 है तो 1, करेक्ट, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5 और लास्ट में 1। तो सेम लॉजिक से हम करेंगे क्या, a रेस टू 5 प्लस 5a स्क्वायर बी, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, a की पावर रिड्यूस होगा 4, देन 10a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab रेस टू 4 प्लस b रेस टू 5। आर यू गेटिंग? इस तरह से हमें एक्सपांशन करना सीखना है। लेकिन ये कब तक कर पाएंगे, सपोज मुझे याद रहा ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 इंडेक्स तक, लेकिन अगर मान लो आपको प्रॉब्लम आ गया कि भाई x प्लस वाई रेस टू 7, तो यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा ना, एवरी टाइम वी हैव टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। तो उसे कंपेंसेट करने के लिए काम करते हैं, इसे कंपेंसेट करने के लिए यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक तरीका ढूंढते हैं। तो वो तरीका जाएगा हमारे चैप्टर नंबर 7 के बेस्ड पे, जो है कॉम्बिनेशन, करेक्ट, जो है कॉम्बिनेशन। किस तरह से उस पर्टिकुलर कंसेप्ट में इन्वॉल्व कर रहे हैं ध्यान से देखना। इंडेक्स 0 है तो चलो वो तो 1 ही आएगा क्योंकि 0 सी 0, क्योंकि यू आर सिलेक्टिंग 0 आउट ऑफ 0 तो 1, करेक्ट। फिर इंडेक्स 1 है तो यानी कि आई एम सिलेक्टिंग 1c 0, ये 1 के लिए ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं 1c 0, और ये 1 के लिए हम लिख रहे हैं 1c 1, है ना, कि पहले 1 में से 0 सिलेक्ट किए तो 1 आएगा, 1 में से 1 सिलेक्ट किए तो भी 1 आएगा। उसी तरह से अब इंडेक्स कितना है 2 है,
सो दिस विल बी 2C0 तो 1। इसके लिए क्या होगा, तो ये होगा 2C1 और इसके लिए होगा 2C2। अब देख लो कॉम्बिनेशंस की फॉर्मूला क्या थी, NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, करेक्ट। अब अगर हम इसको कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2C0 यानी कि 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 0 यानी 2 फैक्टोरियल और 0, तो ये दोनों तो कट होके 1 हो गया, सो 2C0 1। सेम वे 2C1 कितना होगा, 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, तो ये भी 2 आएगा। फिर 2C2 तो हमने तो ऑलरेडी सीखा है कि NCN तो n होता है, यानी कि सॉरी NCN 1 होता है। फ्यू फॉर्मूलाज हमने जो परम्यूटेशन में ध्यान रखी थी, लाइक NC0 1 होगा, NCN 1 होगा। क्यों, क्योंकि यू आर सिलेक्टिंग 0 एट अ टाइम। आप जितने भी आपके पास अल्फाबेट्स है, न्यूमेरिक है, लेटर है, वर्ड्स है, जो भी है, उनमें से आप सिर्फ 0 सिलेक्ट कर रहे हो, तो 0 सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा ना, कोई नहीं। या फिर आप सारे के सारे सिलेक्ट कर रहे हो तो उसका एक ही तरीका होगा, इसीलिए ये NC0 NC1 n आता है, करेक्ट, सिंपल। उसी तरह से हमने एक और शॉर्ट फॉर्म भी देखा था कि NC1 जो है वो n आएगा, NC1 जो है वो n आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वही चीजों को यहाँ पे आप फॉलो करो, तो ये हो जाएगा 3C0, ये हो जाएगा 3C1, ये 3C2 और ये 3C3। सिमिलरली 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। यहाँ पे आ जाएगा 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। तो मैं एक काम करता हूं, आपके लिए अलग से सिर्फ कॉम्बिनेशन का ये टेबल बना देते हैं, करेक्ट। अब देखो 1 के लिए 0C0 लिखने का मतलब नहीं है, करेक्ट, फिर भी लिख लेते हैं, चलो 0C0, फिर 1C0, 1C1, फिर 2C0, 2C1 एंड 2C2, करेक्ट, सिर्फ कॉम्बिनेशंस लिख रहे हो। फिर यहाँ पे 3C0, 3C1, 3C2 और ये हो जाएगा 3C3। उसी तरह से 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। अब अगर मुझे पावर में कुछ भी आ जाए ना, तो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट बात रहेगी नहीं लिखने के लिए। लेट मी शो यू, है ना। सपोज अब मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास कोई टर्म है x प्लस वाई रेस टू 7। अगर ऐसी कोई टर्म आ जाती है, लेट मी से x प्लस वाई रेस टू 7, तो कैसे लिखेंगे, तो इंडेक्स 7 है, तो 7C0 x रेस टू 7, 7C1 x रेस टू 6 और y, क्योंकि पहली टर्म का पावर रिड्यूस होगा, दूसरी टर्म का पावर बढ़ता जाएगा, प्लस 7C2 x रेस टू 5 y स्क्वायर, 7C3 x रेस टू 4 y क्यूब, प्लस 7C4 x रेस टू 3 y रेस टू 4, प्लस 7C5 x स्क्वायर y रेस टू 5, प्लस 7C6 x y रेस टू 6, प्लस 7C7 y रेस टू 7। एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपका जो भी c के साथ वाला एलिमेंट होता है ना, वही आपके y का पावर होगा, यानी कि सेकेंड टर्म का पावर। यहाँ पे 0 तो y रेस टू 0, फिर यहाँ पे 1 है एंड 7C1 तो y का पावर 1, 7C2 तो y का पावर 2, 7C3 तो y का पावर 3, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से हम इसको जनरेट करते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हमने पास्कल ट्राइंगल देखा, और पास्कल ट्राइंगल में जो हमें कोफिशिएंट्स मिल रहे थे, तो वो हमने जब चेक किया तो ये पता चला कि ये सारे तो जो है वो कॉम्बिनेशन से मिलते हुए टर्म्स है, यानी कि कॉम्बिनेशन से मिलते हुए कोफिशिएंट। तो हमने उसको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देखा। डोंट वरी, ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में है, करेक्ट। तो इस तरह से हमें पता चला कि अच्छा ये जो हमारे कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना बाइनोमियल में, कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर देखा तो कि भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो पहला कोफिशिएंट 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो वही है, देखो 1 है, 2 है, 1 है। फिर क्यूब में a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो 1 3 3 1। इस तरह से सेम 4 वाले इंडेक्स में, 5 वाले इंडेक्स में 7, तो वैसे 7 वाले इंडेक्स में ये सारे कोफिशिएंट आ गए, 7C0 7C1 7C2 ऐसे करके ये सारे कोफिशिएंट होते हैं, करेक्ट। और इन कोफिशिएंट्स के आधार पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है और पुट कर देनी है, तो आपका पूरा इक्वेशन जो है एक्सपांशन रेडी हो जाएगा। वी हैव टू कैलकुलेट दिस 7C0 7C1 वगैरह, करेक्ट। बट फिलहाल इस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब एक काम करते हैं, ये सब अगर हमें समझ में आ गया तो
बाइनोमियल थियरम डिफाइन करते हैं इन जनरल वे. जनरल यानी कि पावर n हो तो क्या होगा. करेक्ट. टिल देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Now let's have a look at binomial theorem for any positive integer n. This is our basic theorem which we are going to understand in this chapter, that is a plus b whole raised to n. Correct. And how we are going to expand this? So by the understanding of those coefficients we are going to do something like this: nc0 a raised to n, nc1 a raised to n minus 1 into b plus nc2 a raised to n minus 2 b square till कहाँ तक करेंगे ncn b raised to n, because what we observed is कि a का पावर, a पहला टर्म है तो a का पावर रिड्यूस होना चाहिए. yes it is reducing from n minus 1 n minus 2 से लेके 0, एंड b का पावर इंक्रीज होना चाहिए तो b का पावर 0 1 2 3 एंड लास्ट टर्म तक n. करेक्ट. नाउ जो भी हमने ऑब्जर्व किया था व्हेन वी डिड a plus b whole square, a plus b whole cube, all of the things we can observe here also. So what will be the number of terms? कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमें दिख रही है. तो कि भाई अगर इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी n plus 1. हाउ कैन वी जस्टिफाई दैट कि यस इट इज n plus 1. तो देखो 1 से लेके n, दिस इज n टर्म और ये एक ज्यादा, तो वी कैन से डेफिनेटली हाँ n plus 1 टर्म है. करेक्ट. बिफोर दैट ये तो हो गया, चलो हमें पता ही है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है. यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर होल एक्सपांशन इन द फॉर्म ऑफ समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 0 टू n nck a raised to n minus k into b raised to k. करेक्ट. अब आप सोच रहे हो कि कैसे बन गया. तो देखो मैंने कुछ नया नहीं किया. k की वैल्यू 0 से लेके n तक हमें इसमें पुट करनी है. तो सपोज लेट्स से k 0, तो nc0 a raised to n because k is 0, b raised to 0 no need to write, plus nc1 a raised to n minus 1 b plus nc2 a raised to n minus 2 b square and so on we can keep on going till the last terms. करेक्ट. तो इस तरह से हम इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना. विल सी इन द फ्यूचर एज वेल, क्योंकि हमें ये बहुत काम आने वाला है. सो दिस इज हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड. करेक्ट. बाकी जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है वो सेम रहेंगे. यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है. व्हाट इज दिस nc0 nc1 nc2 एंड ऑल दोज थिंग्स, these are called as बाइनोमियल कोएफिशिएंट. क्यों मैं इतना इस वर्ड पे ज्यादा फोकस दे रहा हूं बाइनोमियल कोएफिशिएंट? बिकॉज व्हेन वी हैव सम क्वेश्चंस, करेक्ट, उन क्वेश्चंस में बोला होता है कि इसका कोएफिशिएंट ऐसा है या ये पर्टिकुलर दिस एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट और अनदर एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट इक्वल है. So we need to understand what is exactly binomial coefficient. So these are the binomial coefficient. All nc0, nc1, nc2, all those are binomial coefficient. These two are the new and important observations. उसके अलावा जो तीन हमने पहले देखे थे वो सेम है. n plus 1 terms will be there. a का पावर रिड्यूस होगा, b का पावर इंक्रीज होगा. और थर्ड क्या देखा था कि भाई जितने भी टर्म है उनके पावर को ऐड करो तो वो आपको क्या दे देगा? इंडेक्स, है ना. a raised to n, n minus 1 plus 1 will give you index n, n minus 2 plus 2 will give you index n. So make sure that you understand this properly. इसके रिलेटेड हम कुछ स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे. बिफोर दैट आई वांट यू टू नोट दिस डाउन. ये दोनों खास करके. करेक्ट. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Now let's have a look at some special cases. Some special cases means what we are going to do, replace this by a and instead of b let's say minus b. So can I write this as a minus b raised to n? Correct. And if you pay proper attention you can write this something like this, a plus minus b raised to n. So to expand this with respect to this one is not a difficult task. कैसे करेंगे? तो simple nc0 a raised to n, b वाली टर्म आएगी नहीं, nc1 a raised to n minus 1 into सेकेंड टर्म माइनस बी है तो माइनस बी लिखेंगे, प्लस nc2 a raised to n minus 2 माइनस b का स्क्वायर से लेके ncn b raised to. Now again we don't know here, so let me say minus b raised to n. सिंपल. अब इसके लिए अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर अटेंशन दो तो ये क्या बन रहा है, तो इट इज गेटिंग
एन सी जीरो ए रेस टू एन माइनस बी का पावर वन यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस विल बिकम माइनस एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए रेस टू एन माइनस टू बी स्क्वायर. वाई? बिकॉज माइनस बी का पावर इवन है तो इट इज इवेंचुअली गोइंग टू बी पॉजिटिव. वैसे अगर आप NC3 के लिए सोचोगे तो नेगेटिव आ जाएगा. क्यों? क्योंकि पावर ऑड होगा तो नेगेटिव बी क्यूब बनेगा. अगेन इवन पॉजिटिव ऑड नेगेटिव ऐसे करते करते अब हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि इंडेक्स ऑड है कि इवन है, तो हम यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे NCN माइनस बी रेस टू एन. दैट्स व्हाई आई सेड हियर keep it as it is. Correct? We don't know. That's what I'm trying to say. तो something like this can be remembered. Correct? फिर एक काम करते हैं, दूसरा केस ऐसा लेते हैं जिसमें a की वैल्यू 1 लेते हैं और b की वैल्यू x ले लेते हैं. क्या करते हैं? a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू x इन दिस पर्टिकुलर एक्सपांशन. तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स रेस टू एन. अब 1 प्लस एक्स रेस टू एन के हिसाब से NC0 पहला टर्म तो 1 है, 1 का पावर कुछ भी लो, नो मीनिंग, सो सिंपली NC0 NC1 अगेन ए रेस टू एन माइनस वन डजेंट मैटर, लेकिन b की जगह पे x, देन NC2 एक्स स्क्वायर से लेके NCN एक्स रेस टू एन. कुछ इस तरह से हो जाएगा. करेक्ट? और अगर इसमें भी b की जगह माइनस एक्स ले लेते हैं यानी कि 1 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 से लेके NCN. एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली कि हमारा इंडेक्स क्या है, इवन है या ऑड, तो वी हैव टू कीप दिस इन माइनस एक्स रेस टू एन. बट यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ गया? आपको रिजेंबल करने के लिए कोई ज्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं इस वाले में. देखो यानी कि इस स्पेशल केस वाले में करेक्ट डायरेक्टली पता चल जाएगा कि बिकॉज ऑफ नेगेटिव ओवर हियर पावर ऑड होगा तो आंसर नेगेटिव, मतलब टर्म नेगेटिव हो जाएगी. पावर इवन होगा तो टर्म पॉजिटिव. प्लस माइनस दिस यू कैन विजुअलाइज. करेक्ट? इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं. सो ये 3 केसेस है एक्चुअली. ये सेकंड है और ये थर्ड वाला है. इन दिस हमने क्या कंसीडर किया? a की वैल्यू 1 लेकिन b की वैल्यू माइनस एक्स. सेकेंड में b इक्वल टू एक्स था, यहाँ पे b की वैल्यू माइनस एक्स ली, तो उसके हिसाब से ये बनेगा. या फिर आप इस स्पेशल केस में कुछ इस तरह से ले सकते हो 1 माइनस एक्स. आर यू गेटिंग मी? सो ये ध्यान रखना है. लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो कि हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है आपके पॉजिटिव इंटीजर की ही, यानी कि पॉजिटिव में फ्रैक्शन भी नहीं चलेगा, नेगेटिव इंडेक्स भी नहीं चलेगा, ऐसा कुछ चलेगा नहीं. एज पर योर CBSE टेक्स्ट बुक, ये जो आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक है, दिस टेक्स्ट बुक ओनली कवर्स व्हेन बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना. सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही चलेगा, ना ही पॉजिटिव फ्रैक्शनल नंबर, ना ही नेगेटिव इंटीजर, ना ही नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर, कुछ नहीं. सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. नाउ व्हाई वी आर सेइंग पॉजिटिव इंटीजर? क्योंकि जीरो आता है, दैट्स वी नीड टू टेक केयर. तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग पॉजिटिव इंटीजर. वरना आप बोलोगे सर 1 से नेचुरल नंबर बोल देते, लेकिन नहीं बोल पाते क्योंकि पावर 0 हो सकता है. एम आई क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, है ना. ये जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 हम करने वाले हैं उसके लिए ये आपका जो पूरा कंसेप्ट है. अब इस कंसेप्ट के बेस पे विल सी फ्यू एग्जांपल्स एंड देन विल गो फॉर द एक्सरसाइज. करेक्ट? आज ट्राई करेंगे एटलीस्ट एग्जांपल्स खत्म हो जाए. एक्सरसाइज विल बी इन द नेक्स्ट क्लास. करेक्ट? सो आई गेस यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल दिस स्पेशल केसेस डाउन. Now let's have a look at example number 1. It says expand. What are we supposed to expand is x cube plus 3 by x. Sorry, x square plus 3 by x whole raised to 4. जिसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि x की वैल्यू 0 ना हो, because here it is in denominator. Correct? तो क्या करेंगे? By using बाइनोमियल थियरम, है ना. वही हम अप्लाई कर सकते हैं और कोई तो है नहीं हमारे पास फिलहाल. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स रेस टू 4 क्या हो जाएगा? तो 4c0 एक्स स्क्वायर का पावर 4. ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूं, प्लस 4c1 एक्स स्क्वायर का पावर क्यूब इंटू 3 बाई एक्स प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर और 3 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 4c3 एक्स स्क्वायर और 3 बाई एक्स का क्यूब
प्लस 4c4 तो 3/x⁴ सिंपल। अब देखो 4c0 4c1 4c2 कैलकुलेट करना कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। मैंने जैसे कहा nc0 और ncn हमेशा 1 ही आता है, तो ये 1 हो गया। x का पावर स्क्वायर है और उसका भी पावर 4 तो 8 हो जाएगा, प्लस 4c1 4 हो जाएगा, x स्क्वायर यानी x⁶ इंटू 3/x प्लस 4c2 कितना होगा। तो अगर ये नहीं याद हो तो आप फैक्टोरियल यूज कर सकते हो, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल x⁴ इंटू 3/x² प्लस 4c3 यानी कि वो भी 4 ही होगा। देखना 4 nc1 मैंने कहा था, वैसे ncn-1 भी वही होता है, 4 ही होता है, मतलब n होता है, करेक्ट। तो लेट मी से 4 इंटू x² इंटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी आएगा, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय x³ प्लस 1 होगा, सो 3⁴ अपॉन x⁴। Am I clear? अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक एक x कट होके 5 बचा, यहाँ पे 2 कट होके 2 बचे, यहाँ पे स्क्वायर कट होके नीचे 1 बचा और वहां पे तो बचा वो पूरा रहेगा। सो x⁸ 4 3 12 x⁵ प्लस 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 और इंटू 2 फैक्टोरियल, तो एक एक 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। 4 इंटू 3 12 12/2 6 या करेक्ट 6 और यहाँ पे बच गया 6 6 इंटू 9 9 6 54 x² प्लस 3 का क्यूब 27 27 इंटू 4 27 इंटू 4 कितना होगा, कोई कर पाएगा? 27 इंटू 4 54 108 या 108 डिवाइडेड बाय x प्लस 27 81/x⁴। ये आपका एक्सपांशन x⁸ प्लस 12x⁵ प्लस 54x² प्लस 108/x प्लस 81/x⁴। तो आपको आइडिया आ रहा है कि देखो सिंपल सा टर्म है, लेकिन पावर सिंपल सा है 4 ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ द टर्म x² है और 3/x है, कितना आपको ऐसे थोड़ा सा भर भर के लिखना पड़ रहा है। करेक्ट है, इजी, but you just need to follow the theorem properly so that you can be able to do anything in very simple way. Correct? चल, then let's go for example number 2. Simple. क्या दिया हुआ है? Let's say example number 2 में compute 98⁵. compute 98⁵. चलो, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, आप लोग ने पॉज करके लिख लेना है तब तक में, अगर रह गया हो तो, अगर बात लिख लिया हो तो वेरी गुड, बिकॉज यू नो मैं एवरी वीडियो में बोलता ही रहता हूँ, है ना, कि पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज दिस वीडियो नोट इट डाउन वगैरह। सो कैसे करेंगे 98⁵? सो कैन वी राइट दिस एज 100 - 2⁵? लेकिन अगर 100 - 2⁵ लिख रहे तो थोड़ा सा हमें केयरफुली तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये a - b⁵n वाला फॉर्म है और यूजिंग बाइनोमियल थियरम। अब मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ, BT बाइनोमियल थियरम। क्या लिखेंगे? 100 - 2⁵ 5c0 इंटू 100⁵ माइनस 5c1 100 का पावर 4 इंटू 2 प्लस 5c2 100 का पावर क्यूब 2 का पावर में स्क्वायर माइनस 5c3 100 स्क्वायर एंड 2 का क्यूब। देखो जहां पे भी 2 का पावर ऑड है वो नेगेटिव हो रहा है, करेक्ट, प्लस 5c4 100 इंटू 2⁴ माइनस 5c5 इंटू 2⁵. तो 5c0 1 ऑलवेज, nc0 ncn 1, ये 1 ये 1, 5c1 5c4 5, nc1 और ncn-1 हमेशा n आता है। 100 का पावर 5, सो 1 2 3 वापरे 10 100 यानी 10 स्क्वायर, 5 2 10, लेट मी राइट लाइक दैट ओनली, है ना, कि 10 का पावर 10 माइनस 5c1 यानी 5, 10 का पावर 8 इंटू 2, ये भी 5 2 10 ही हो जाएगा। 5c2 यानी भी 10, अब चेक कर लेना 5c2 10 ही आता है, देखो ऐसे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 2, सो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो 3 3 का 2 फैक्टोरियल 2 2 2 4 5 2 10,
5c2 और 5c3 सेम आता है, फिलहाल इसको ऐसे लिख देते हैं 10 का पावर स्क्वायर है तो 3 टू 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5c3 अगेन 10 एज आई टोल्ड यू 10 का पावर 4 इंटू 2 का पावर क्यूब 8 प्लस 5c4 यानी 5 इंटू 100 इंटू 2 का पावर 4 16 माइनस 32। अब ये चीज आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी कैलकुलेट। क्या है 10 का पावर 10 है मतलब कि 10 जीरो, जब स्क्वायर बोलते तो 2 जीरो, तो 10 का पावर 10 यानी 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 माइनस 5 टू 10, 10 का पावर 9 हो जाएगा प्लस 10 रेज़ टू 6 प्लस 1 7 और 10 का पावर 7 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 टाइम्स 4 और 7 0 3 2 5 6 7 माइनस थोड़ा 32 के पास चलेंगे, इसे लाइन ऊपर जा रही है ना इसीलिए, तो ये 32 थोड़ा सा रफ करके यही लिख देते हैं। करेक्ट। अब आया 10 रेज़ टू 4 प्लस 1 5 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 प्लस 16 5 80, 80 का एक 0 और 2 0 ये माइनस 32, और आप लोग इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं नहीं करने वाला आपके लिए सब्ट्रैक्ट, है ना। यू पीपल आर स्मार्ट इनफ, आप लोग अपने आप से कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू लीव इट फॉर यू पीपल, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस सब्ट्रैक्शन। करेक्ट है ना, डोंट वरी। एग्जांपल ये, और जहां तक कुछ कुछ बोर्ड लेवल की बात है वहां तक कुछ बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड होता है तो वो लोग तो क्विकली कर लेंगे, जिनके लिए अलाउड नहीं होता है वो लोग थोड़ी सी मेहनत करें, यू विल डेफिनेटली गेट इट। करेक्ट। लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल नंबर 3। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3 में? Which is larger? Which is larger? अब किस में? तो दो नंबर चाहिए ना। 1.01 के पावर में कितने जीरोस है मेरे को देख लेने दो। आई गेस 6 है। करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 और 10,000। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है ऐसा पूछा है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े बड़े डेसिमल में यार 1.01 है तो फिर हम कैसे करेंगे। तो लेट मी शो यू हाउ वी कैन आइडेंटिफाई विच नंबर इज लार्जर एंड विच इज स्मॉलर। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा तो वो आप लोग खुद से कर सकते हो, है ना। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें वो क्वेश्चन मैं आपको खुद से ट्राई करने के लिए दूंगा। फिलहाल यहाँ पे देखो तो 1.01 करेक्ट का पावर कुछ भी हो, फिलहाल हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01। पावर बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले इस तरह से तो लिख सकते हैं ना। अब पावर देखो बहुत बड़ा है, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे कि 1 प्लस 0.01 6 पावर ऐसे, हाँ। यानी कि इफ यू कंसिडर दिस एज अ 10 लाख, यानी कि टोटल टर्म्स विल बी 10 लाख 1। टोटल टर्म्स विल बी 10। कैन यू राइट ऑल द टर्म्स? Yes, obviously I am kidding, मजाक ही कर रहा हूँ ना। Who will write 10 lakh 1 terms? कोई नहीं लिखेगा भाई, आप क्या, मैं भी नहीं लिखूंगा, छोड़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 10 lakh C0 इंटू 1, यानी कि नहीं लिखेंगे कुछ भी तो चलेगा, प्लस 10 lakh C1 इंटू 0.01 पहला ही टर्म, और उसके बाद बोल देंगे पॉजिटिव टर्म्स, क्योंकि भाई अब तो थोड़ी सी हालत पतली हो जाएगी, क्योंकि 10 लाख C2 इंटू 0.01 का स्क्वायर, सो जो भी होगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। और क्यों ऐसा कर रहे हैं तो उसका रीजन अभी आपको पता चलेगा। दिस इज गोइंग टू बी 1 डेफिनेटली। 10 लाख C1 यानी कि 10 लाख ही आएगा, आई टोल्ड यू, 3 3 6 इंटू 0.01 प्लस सम पॉजिटिव टर्म्स, कुछ पॉजिटिव टर्म्स यहाँ पे चल रही है। करेक्ट। अब इसका मल्टीप्लाई करो कितना होगा, तो कि 0.01 है, यानी कि 1/100 दो जीरोस कट हो जाएंगे, यानी आई विल गेट 10,000 प्लस पॉजिटिव टर्म्स, एंड दिस पर्टिकुलर विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 10,000। ये जो मिल रहा है वो आपके लिए 10,000 से बड़ा ही होगा ना। अरे देख लो ना, 10,000 प्लस 1, अब उसमें कुछ भी ऐड करो तो वो तो ऐसे ही बढ़ते ही जानी वैल्यू। ये 10,000 प्लस 1 तो मिल गया, यानी कि ऑलरेडी वी गेट टू नो कि इट इज मोर देन 10,000। बात खत्म। इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? दिस वन। सो वी कैन से देयरफॉर 1.01 रेज़ टू 10 लाख इज
लार्जर देन 10,000। वेरी सिंपल, देखो कोई डिफिकल्टी नहीं है, एकदम आराम से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन, है ना, फिर भी ध्यान रखना। करेक्ट। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी। कैसे करेंगे, तो क्या बोला है कि बाइनोमियल थियरम की मदद से प्रूव करना है 6n minus 5n always leaves a remainder 1 when divisible by 25। यानी कि इसको आपको बताना है कि 25k+1 ऐसा मिले। क्यों मैंने ऐसा लिखा, तो कि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जब आप 6n minus 5n को ऐसा बताना है कि वो हमेशा रिमाइंडर 1 छोड़ेगा जब हम उसे 25 से डिवाइड करेंगे। करेक्ट, किससे डिवाइड करेंगे, 25 से। तो डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग मल्टीपल ऑफ 25 और उसमें 1 ऐड करना है क्योंकि दैट 1 विल बी आवर रिमाइंडर, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। करेक्ट। बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को शुरू करने के लिए करेंगे क्या, तो देखो ऑब्वियसली हम यहाँ पे ये वाला एक्सपांशन यूज करेंगे 1 + a⁻n nc0 + nc1a nc2a² से लेके ncn a⁻n। कैसे करेंगे, तो लेट्स कंसीडर दैट a इज इक्वल्स टू 5। तो कैन आई से दिस इज 1 + 5, तो 6 हो जाएगा ना, इक्वल्स टू n, तो अभी भी n ही है, n में तो कोई चेंज आया ही नहीं है, तो nc0 nc1 × 5 nc2 × 5² से लेके ncn × 5⁻n। करेक्ट, ये हो जाएगा आपका 6⁻n nc01 nc1n होता है, यानी कि ये होगा 5n प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो 5n इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो आई कैन टेक 5² कॉमन और बचा क्या nc2 प्लस 5 टाइम्स nc3 क्योंकि 5³ होगा, है ना। अब चाहो तो पीछे लिखना तो पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। nc3 × 5 nc4 × 5² से लेके ncn 5⁻n-2 क्योंकि स्क्वायर कॉमन निकाल दिया ना, तो इस तरह से। सो दिस विल बिकम 6⁻n - 5n, ये हो गया -5n इक्वल्स टू 1 + 25 × nc2 + nc3 5 से लेके ncn 5⁻n-2। एक काम करते हैं ना, इसको ये देखो, ये आप कुछ भी करो, n की वैल्यू अगर एक बार आपको पता चल भी जाए ना, तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम इंटीजर। तो हम उसको एक काम करते हैं ना कि कोई इंटीजर k बोल देते हैं, तो 6⁻n - 5n is equals to 25k+1 where k is equals to nc2 + nc3 × 5 से लेके ncn 5⁻n-1 and which is definitely going to be some integer, don't worry। कोई चांस ही नहीं है कि इंटीजर के अलावा आपको कुछ और मिले, समझना, है ना। तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व व्हेन वी वांट टू फाइंड समथिंग रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड बाय समथिंग एल्स, है ना। अब जरूरी नहीं है कि हर बार रिमाइंडर बचने वाला प्रॉब्लम ही पूछे, देयर मे बी लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन विच वी हैव इन द एक्सरसाइज। सो आई गेस आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमारे खत्म होते हैं एंड विल स्टॉप हियर ओनली। बट मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इन अ प्रॉपर वे, सारे स्पेशल केसेस ध्यान रखना, याद कर लेना, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू सॉल्व द एक्सरसाइज। एम आई क्लियर? चलो देन आई गेस आई विल टेक अ लीव।